Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 8, The Glory of Bharatvarsh from class 6th SS semester 1. The Glory of Bharatvarsh. We have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. We gathered information about the rulers and heritage of various ages. हमने ऐतिहासिक भारत के बारे में 8th सेंचुरी के स्टोन एज से काफ़ी कुछ जाना है। हमने काफ़ी सारे अलग अलग युगों के राजाओं और उनकी विरासत के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करी है। India is a huge nation like subcontinent. Since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. भारत एक बड़ा राष्ट्र है, एक सब कॉन्टिनेंट के जैसे, इसलिए ऐतिहासिक समय से ही काफ़ी सारी जाति और जनजातियाँ भारत की समृद्धि से खींचते हुए भारत में आ गए हैं। Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of diversity. इसी वजह से आप देख सकते हो भारतीय संस्कृति की विविधता एक तरह से संगम बनाता है। Jawaharlal Nehru has called it unity in diversity. We will gather information about art and architecture and social life of our country. जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात के लिए भारत को कहा था कि अनेकता में भी एकता है। हम अपने देश की कला, वास्तुकला और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे so that we can get information about the glorious heritage of people of ancient India, ताकि हमें ऐतिहासिक भारत के लोगों की गौरवशाली विरासत के बारे में जानकारी हासिल हो सके। Ancient India agriculture. We get maximum food we consume and things we use in our daily life from farm products. हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें खाते हैं या फिर जो चीज़ें अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सब हमें खेती से ही मिलती हैं। Farming began in ancient India. In those days, also various tools and irrigation facilities were developed for farming. खेती की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत ऐतिहासिक भारत में ही हुई थी। उन दिनों में भी खेती करने के लिए काफ़ी सारे औजारों और सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ था। In ancient times, wheat, barley, paddy, ज्वार, millet, sesame, peas, etc. were cultivated. तो पुराने समय में भी wheat, barley, paddy, ज्वार, millet, sesame, peas इन सब चीज़ों की खेती हुआ करती थी। Tools. In Harappan culture, plough has not been found among tools used in agriculture, but plough-shaped toy has been found, so it can be said that they were using plough for farming. तो हरप्पन कल्चर में जो औजार खेती करने के लिए मिले उसमें हल नहीं मिला, लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिला है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उस समय के लोग खेती करने के लिए हलों का इस्तेमाल करते होंगे। Use of iron tools had been increasing in the field of agriculture. It includes axes for clearing forest and front portion of plough used for plowing soil. In addition, they were familiar with sickle, axe, etc. also. तो खेतों में कृषि करने के लिए लोहे के औजारों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ी भी शामिल थी और खेतों की जुताई करने के लिए हलों के आगे वाले हिस्से का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा वो लोग कुल्हाड़ी और दरांती से भी परिचित होंगे। इरिगेशन. विदाउट rich villages, it was difficult for kings and their kingdoms to survive. Just as new tools and seedlings were important steps for development of agriculture, irrigation also proved to be very useful. At this time, canals, wells, lakes and artificial reservoirs were created for irrigation. अब नेक्स्ट बारी आती है इरिगेशन की। तो बिना अमीर गांव के राजाओं और उनके राज्यों को बनाए रखना भी बहुत मुश्किल था। नए औजारों के जैसे ही अंकुर यानी जो खेती के विकास के लिए बीजों के लिए भी बीज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सिंचाई भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई थी। इस समय में सिंचाई के लिए काफ़ी नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों को भी बनवाया गया था। Ancient India, rural life. Life in the village of north and south was as follows. The head of the village was called Gram Bhojak in the North India. Usually people from the same family remained on the post for generation. This post was hereditary. तो उत्तर और दक्षिण के गाँव में ज़िंदगी कुछ इस तरह थी। उत्तर भारत के गाँव में जो मुखिया होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था,
ज़्यादातर उसकी उसी परिवार से लोग अपने आने वाले समय में उनको ही वही पोस्ट मिलती थी। ये जो पोस्ट थी वो वंशागत थी, यानी कि हेरिडिटरी। ग्रामभोजक used to be the biggest landowner in the village. This landowner used to keep people on rent to do farming. King also gave him responsibility of collecting revenue. He looked after law and order situation also. तो ग्राम भोजक को गांव का सबसे बड़ा ज़मीन का मालिक माना जाता था, यानी ज़मींदार। ये ज़मींदार अपने खेतों पर किराए पर लोगों को रखते थे ताकि वो लोग खेती करें। राजा भी उसे रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे और वो कानून और व्यवस्था को भी बनाकर रखते थे। There were three types of people living in the southern India: big landlords, small farmers and landless laborers, that is servants. तो दक्षिण भारत में 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो बड़े ज़मींदार, दूसरे छोटे किसान और तीसरे भूमिहीन मजदूर। लाइफ इन टाउन्स। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वे कैपिटल्स ऑफ महाजनपद्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो लगभग 2500 साल पहले ज़्यादातर जो शहर थे वो महाजनपद्स की राजधानी थी। दिस सिटीज़ वे प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफिकेशन, और ये सारे शहर किलों से एकदम सुरक्षित थे। स्फेरिकल वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी सिटीज़ विच वर नोन एज वेल्स। दिस वेल्स वे यूज फॉर टॉयलेट्स, ट्रेन्स और डस्टबिन्स। तो काफ़ी सारे शहरों में गोलाकार कुएं पाए गए जिसे हम कुआं कहते हैं। तो ये कुएं शौचालय, नालियों और कचरे के डिब्बों के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। People in rural areas and urban areas used wheat, barley, rice, milk, curd, ghee, fruits, etc. and meat and fish for eating purpose. तो ग्रामीण और शहरी लोग खाने के लिए वीट, बार्ले, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स, मीट और फिश का इस्तेमाल करते थे। Usually men and women wore two clothes. The cloth they wore on the lower part of the body was called nivi, and the cloth worn on the upper part of the body was called vas. Sometimes they wrapped a cloth like dupatta around the upper part, which was called adhivas. तो ज़्यादातर औरतें और आदमी 2 कपड़े पहनते थे। जो कपड़ा वो अपनी बॉडी के लोअर पार्ट में पहनते थे उसे निवी कहते थे, और जो बॉडी के ऊपरी हिस्से में पहना जाता था उसे वास कहा जाता था। कई बार तो वो एक कपड़े को अपने शरीर पर दुपट्टे के जैसे लपेट लेते थे, जिसे अधिवास कहा जाता था। नेक्स्ट इज एंशिएंट इंडियन आर्ट। हिस्टोरियंस डिवाइड आर्ट इनटू 2 पार्ट्स: फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स included drawing, painting, literature, architecture, music, clay art, etc. तो इतिहासकारों ने कला को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला तो फाइन आर्ट्स और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, क्ले आर्ट्स ये सब शामिल है। While performing arts included dance and drama. We will look into these matters in details. जबकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस और ड्रामा शामिल है। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल लर्न मोर। बाय बाय।